Welcome back to our YouTube channel Sai Academy, where we conduct classes for UGC NET Psychology, CUET PG as well as 11-12 boards. सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है साई एकेडमी, जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं फॉर UGC NET साइकोलॉजी, फॉर CUET PG और 11-12 बोर्ड्स. नाउ आज हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो हमने अभी तक की क्लासेस में कवर नहीं किए हैं. तो ये हम कुछ 4 थियोरीज डिस्कस करेंगे. थियोरीज या कॉन्सेप्ट्स आप उनको बोलें, जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आ चुके हैं और आते हैं. और ये जो क्लास है ये हमारा लास्ट क्लास होगा हमारे सोशल साइकोलॉजी सीरीज़ का. In today's class we will discuss 4 important topics that we have not discussed before these the classes that happened before, we have not discussed them, but since these theories are important from our exam point of view, so we'll quickly wrap up these 4 very short theories or concepts, and this class will be our last class for the social psychology series. So let's start. आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कर्ट ल्यूविन का मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट. तो कर्ट ल्यूविन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका सोशल साइकोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट ही गेव वाज दीज मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. सो कर्ट ल्यूविन he was a German American psychologist who had a lot of contributions in social psychology, and he gave many theories, many concepts, and one of those important ones is this motivational conflict theory or the motivational conflicts that he gave. तो ये जो motivational conflicts हैं अकॉर्डिंग टू कर्ट ल्यूविन, ये आप तब फेस करेंगे जब भी आपको कोई इम्पॉर्टेंट फैसला लेना हो, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो. ऐसे सिचुएशंस में आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर सकते हैं. सो दीज कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वर गिवन बाय कर्ट ल्यूविन आर conflicts that you would face whenever you have to make some sort of decision. Now, before discussing the 4 types of conflicts that he gave, that Kurt Lewin gave, let us first discuss a very important concept that also comes in our exams, and that we'll be able to understand how it works through when we'll study the conflicts, but it is a very important concept which forms the basis. तो शुरू करने से पहले जो हमारे 4 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेते हैं जो रिलेटेड है हमारे आज के टॉपिक से. सो there's something called vacillation. Now what is that? Vacillation is the indecisiveness, or you could call the back and forth movement. So vacillation is the indecisiveness or back and forth movement which you face whenever there are some, we'll write it here, conflicting goals or maybe desires. So whenever you're facing some sort of conflict, whenever you're not able to decide which side to go on, which side to choose, which thing to choose. So the indecisiveness, when you're not able to decide, when you go back and forth कि आगे पीछे जाते हैं आपकी, if you मतलब you're not sure कि आप ये चूज़ करें या वो चूज़ करें. अगर 2 गोल्स हैं तो कभी आपको लगता है ये चूज़ करें वो चूज़ करें. तो बैक एंड फोर्थ यू कीप गोइंग बिटवीन 2 choices, 2 goals, 2 desires. So when you're not able to decide, that kind of state, जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप इसको चूज़ करें उसको चूज़ करें, आप आगे पीछे होते हैं बैक एंड फोर्थ, दैट इज़ आर वैसिलेशन. अब हम देखते हैं कितना वैसिलेशन किस किस कॉन्फ्लिक्ट में कितना होता है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. अब अप्रोच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
वो है कि you have two desirable options or goals, whatever you want to call them. So you have two desirable options and you have to choose one. So in such a situation, when you have two desirable options and you have to choose one, that is when approach conflict takes place. Now if we discuss an example for approach, let's say a very simple one. Let's say not able to decide. So you want to go on a vacation but you're not able to decide which place to choose. Let's say you live in North India, but for going out for a vacation you're not able to choose between some northeastern state or some southeastern state. So that would be an example of approach. तो approach का एक एग्जाम्पल अगर हम लें, बहुत सिंपल सा, कि आपको घूमने जाना है बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप अगर आप जैसे लेट्स से नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में जाएं घूमने या हम साउथ इंडिया में जाएं, बिकॉज आपको दोनों ही पसंद है जगह, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. सिंस यू लाइक बोथ ऑफ दोज प्लेसेस, यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर बोथ ऑफ दोज प्लेसेस, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड विच वन टू गो फॉर. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की, जो है अवॉइडेंस. तो जैसा कि आप मे भी समझ गए होंगे, अवॉइडेंस में यू हैव टू अनडिजायरेबल ऑप्शंस and you have to choose the one that is lesser evil. So in the avoidance kind of approach, you have two undesirable options and you have to choose one that is less undesirable, lesser evil. तो जो अब अवॉइडेंस अप्रोच है उसमें दो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि दोनों ही आप नहीं करना चाहते, तो दोनों में से जो कम अनडिज़ायरेबल है, कम ईविल है, या फिर आपको कम बुरा लगता है, ऐसा एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा कि दोनों ही बुरे लगते हैं आपको, दोनों ही पसंद नहीं है, बट दोनों में से कौन सा कम पसंद नहीं है, नापसंद है आपको, तो वो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं अवॉइडेंस में. अब जैसे हम लोग लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे, बट अगर हम देखें अप्रोच में, तो उसमें आपको डिज़ायरेबल ऑप्शन चूज़ करना था, तो आपको दोनों ही पसंद है, तो उसमें वैक्सीनेशन कम होगा. बट क्योंकि अवॉइडेंस में दोनों अनडिज़ायरेबल है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हो कि इसको अवॉइड करें कि उसको अवॉइड करें, तो इसमें बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली. सो द वैक्सीनेशन हियर इज़ कंपेरेटिवली हाई बिकॉज यू हैव टू चूज़ बिटवीन टू अनडिज़ायरेबल ऑप्शंस. So it gets very difficult to you're not sure which one to let go of. Both are worse. Versus approach where since both are desirable, so there is not a lot of confusion. So we'll list in the end that which has how much vacillation compared to each other. But right now this is what we need to know. So one example of avoidance could be that, let's say you do not like going to the dentist, let's say for whatever reason, maybe you are scared of them, maybe you did not have a good experience in the past, but you have a toothache and you are not able to bear with it. Your gums are all swelled up and everything, and it's hurting like crazy, so you have to go to a dentist. You do not have an option, so you do not want to go to a dentist, but then maybe you hate them, or maybe something happened to the point that you hate them, that you don't want to go to them, you always avoid it, but then the toothache is also getting worse. So you both are undesirable options, but then you have to choose the one that is less undesirable. जो अवॉइडेंस है उसमें हमने बोला कि जैसे कि दोनों ही अनडिज़ायरेबल है, आप दोनों ही नहीं करना चाहते, तो उसमें से जो लेस अनडिज़ायरेबल है आपको चूज़ करना पड़ता है.
तो जो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि लेट्स से किसी भी वजह से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है, मे बी आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ हो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई हो या कुछ भी हुआ हो, तो आपको नहीं पसंद है डेंटिस्ट के पास जाना। तो लेकिन आपका टूथ एक हो रहा है, आपके दांत में दर्द है टू द पॉइंट कि आपके जो गम्स हैं वो स्वेल हो चुके हैं, आपको बात करने में खाने पीने में दिक्कत हो रही है, बट आपको डर लगता है डेंटिस्ट के पास जाने से। तो दोनों ही क्योंकि अनडिज़ायरेबल हैं, उसमें से फिर आप इन दी एंड डिसाइड करते हैं जो लेस अनडिज़ायरेबल है। मे बी आपको लगता है कि चले जाते हैं डेंटिस्ट के पास इन दी एंड, बट मे बी नॉट एवरीबडी कैन रिलेट टू दिस एग्जाम्पल, बट मोर और लेस यू अंडरस्टैंड कि बोथ आर अनडिज़ायरेबल बट यू चूज़ द लेस अनडिज़ायरेबल वन, कि आपको जाना भी नहीं है डेंटिस्ट के पास, पर आपको अपने दांत का भी दर्द नहीं सहना है, तो आपको डिसाइड करना है कि फिर आपको क्या करना है। सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया अवॉइडेंस का। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट काइंड ऑफ मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की, जो है अप्रोच अवॉइडेंस। तो अप्रोच अवॉइडेंस में हम देखते हैं कि हमारा हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव वन गोल or option, and this one option has a positive aspect and we'll write it here only, a positive aspect and a negative aspect. So we have one goal itself, and that one goal has both positive aspects and negative aspects, and then you have to figure out if you want to go with it or not. तो जो हमारा अप्रोच अवॉइडेंस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें जो गोल है या जो ऑप्शन है हमारे पास एक ही होता है, और उसी ऑप्शन या गोल के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, सेम गोल का सेम ऑप्शन का। ये हमें याद रखना है कि जैसे अप्रोच में अप्रोच अवॉइडेंस में उसमें हमारे दो डिज़ायरेबल ऑप्शंस थे, दो डिज़ायरेबल गोल्स थे, या फिर जैसे अवॉइडेंस में दो अनडिज़ायरेबल थे, तो दो गोल्स में से आपको एक चूज़ करना है या दो ऑप्शंस में से आपको एक चूज़ करना है। बट यहाँ पे जो गोल या ऑप्शन है वो एक ही है, उसी के दो एस्पेक्ट्स हैं, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको वो चीज़ करनी है या नहीं। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें तो लेट्स से आप एक ऑफिस में ऑलरेडी काम करते हैं या फिर मे बी काम करना चाहते हैं। लेट्स से आप ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, कोई एक ऑफिस है और आपका जो वर्क प्लेस है वो वेल पेइंग है, आपका जो जॉब है वो वेल पेइंग है, सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन तो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट एग्जांपल हो गया सैलरी, जो कि बहुत हाई है, बट जो वर्क एनवायरनमेंट है वो टॉक्सिक है। मे बी आपके कोलीग्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, मे बी आपके बॉस एकदम अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मे बी बहुत वर्क प्रेशर है, तो पर सैलरी बहुत अच्छी है। तो ऐसे केस में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको वो जॉब कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। तो जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है वो भी वैसिलेशन, ये बहुत हाई होगा इसमें, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो लेट्स इफ़ यू टेक एन एग्जांपल, लेट्स से देयर इज़ वर्क प्लेस, यू वर्किंग समवेयर, you're an employee, and this place it pays very well, it's a very well paying job, but so that is the positive aspect, the salary. But then the work culture that there is, let's say your colleagues are very competitive, or maybe your senior, your boss, they are not very understanding, or there is, let's say, a lot of pressure on you. So this is the negative aspect, that work culture is very toxic. So the same goal or option, that is, working, if you want to continue working in this place, so there is one goal or option, and that particular goal or option has two aspects, the positive and the negative aspect. So now you have trouble in deciding whether you want to continue working there or not. So you have trouble deciding for this one goal itself, which has two aspects. So this is our approach avoidance, and also the vacillation here will be high, because there is one goal and you are closer to this goal, but then you are having difficulty deciding, because it is equally appealing
and equally unappealing. So the kind of confusion, the kind of indecisiveness will be very high. So this is our approach avoidance. Now we will move on to our final kind of conflict. Now if we talk about the final kind of conflict, that is the multiple or double approach avoidance, approach avoidance conflict. So first we will talk about the double approach avoidance. So in the simple approach avoidance kind, we saw that there was one goal, there was a goal or an option, so one goal or option, and that had two aspects, a positive one and a negative one. But in the double one, there is another goal or option again which has a positive and a negative aspect. तो जो डबल अप्रोच अवॉइडेंस है इसमें फिर हम मल्टीपल की भी बात करेंगे. तो जैसे हमने सिर्फ अप्रोच अवॉइडेंस में देखा कि एक गोल था, एक गोल या एक ऑप्शन था जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट था. बट जो डबल है उसमें दो गोल्स हैं, एक गोल और दूसरा गोल, और दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और इन दोनों गोल में से या दोनों ऑप्शन में से हमें एक चूज़ करना है. तो अब we'll try to understand it through an example. Let's say एक इंडिविजुअल है जिसको पीएचडी में एडमिशन मिल गया है दो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल है, देयर इज़ वन पर्सन who has got admission in two different colleges or universities for PhD. Now they have to decide between these two. Now college A, so first of all this individual is one who gets homesick very easily, who likes to stay at home, or rather when compared to staying in some other city, they are someone who has not had very good experiences staying in hostels or PGs, maybe because of the experiences, because of the expenses, because of the kind of food that they get, maybe their health was not, the mental or physical health was not very good when they were staying out, so they are someone who prefers to stay at home. So college A is one that is in their hometown. Yeah. But then this college or university is not very prestigious. So this person also cares about how prestigious the university is. They care equally about both of these aspects. So they want their mental and physical health to stay well, to stay good, but then they also prefer the prestige of the university. So this college A is present in their hometown, but it is not as prestigious as college B, which is a prestigious one, but it is in some other city. तो ये जो इंडिविजुअल है इनको ये जब बाहर रहे थे तो मे बी लिविंग एक्सपेंसेस में भी बहुत महंगा था इनके लिए, या मे बी खाना पीना इनका अच्छे से नहीं हो पा रहा था, उतने लोग नहीं मिल रहे थे जान पहचान के, तो इसलिए इनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहता है बाहर, तो ये घर पे रह के पढ़ना या काम करना प्रेफर करते हैं. तो एक जो कॉलेज ए है जो कि इनके होम टाउन में है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया कॉलेज ए का. बट नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वो उतना प्रेस्टिजियस, उतना वेल नोन यूनिवर्सिटी नहीं है, तो जो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस इंडिविजुअल के लिए. बट जो कॉलेज बी है वो वेल नोन है, बट वो किसी और सिटी में है, तो उनको एक पीजी या हॉस्टल में रहना पड़ सकता है. तो अब इस इंडिविजुअल को इन दोनों कॉलेजेस में से एक को डिसाइड करना है, और हर एक कॉलेज के एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है. तो यहाँ पे ये हमारा है डबल अप्रोच अवॉइडेंस. अब मल्टीपल में देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड गोल है, वैसे अगर हम मल्टीपल की बात करें तो इसमें मोर देन 2, यानी कि फिर इसमें 3 गोल होगा, 4 गोल्स होंगे, और हर एक गोल का एक पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट होगा. So
जैसे डबल में इन द डबल अप्रोच अवॉइडेंस देर आर 2 गोल्स वी हैव, first and second, but if you talk about multiple there will be more than 2, यानी कि so you have a third goal which has positive and negative aspects, you might have fourth goals which have positive and negative aspects, so accordingly there are more than 2 goals or options, and then each has positive and negative aspect, and then you have to choose amongst all of those goals, so it gets more and more difficult. So the vacillation here will be more than the only approach and avoidance kind. Now we will finally talk about how much vacillation exists in each of these conflicts as compared to each other. So if we start from the lowest vacillation, that would be in approach, where as we discussed that both the goals, both the options are desirable, so there is not a lot of indecisiveness, not a lot of confusion that you have when it comes to deciding, because both are desirable. Now if we talk about avoidance, then both the goals or both the options are equally undesirable, at least that is what it seems initially. They are both undesirable, and you choose the one that is comparatively less undesirable, which you figure out after a while. But since both are undesirable, so there is some back and forth movement. Then in approach avoidance, there is one goal, and that particular goal has a positive and a negative aspect. Now you know that there is this one goal, but that goal has a positive and a negative aspect. So here you had to choose in approach and approach avoidance. There were 2 goals and you had to choose between them. But here there is one goal, you know that there is this one particular goal, but that has a positive and a negative aspect. Maybe they are 50-50 for you, so you're not able to figure out if you should go for it, if you should continue with this particular option or not. So comparatively there is more back and forth movement, more and indecisiveness when it comes to this kind of approach avoidance conflict. And if you talk about the double or multiple one, so this is twice. If you talk about double approach avoidance, the conflict will be twice as compared to approach avoidance, because then there are 2 such goals which each has positive and negative aspects, and then you have to decide between both of them. So comparatively the conflict, the indecisiveness, the back and forth movement basically will be more in this kind of in the double versus where there is one goal to decide. So now अगर हम देखें कि वैसिलेशन की जो हम बात करते हैं कि किस में कम है किस में ज़्यादा है, तो सबसे कम हमारा अप्रोच अवॉइडेंस में है, क्योंकि जो दोनों गोल्स हैं, 2 गोल्स होते हैं यहाँ पे, और दोनों गोल्स ही डिज़ायरेबल हैं. तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ही आप करना चाहते हैं, तो इसलिए उतना इनडिसाइसिवनेस, उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है डिसाइड करने में. वर्सेस अवॉइडेंस में जिसमें दोनों गोल्स ही अनडिज़ायरेबल, आप दोनों ही नहीं करना चाहते और आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा कम आपको बुरा लगता है, तो इसमें आपको डिसाइड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों ही आप अवॉइड करना चाहते हैं. और अप्रोच अवॉइडेंस में क्योंकि पहले के 2 में 2 अलग गोल्स थे, उसके बीच में आपको डिसाइड करना था, क्योंकि आपको क्लियर था कि जैसे अप्रोच में कि दोनों ही डिज़ायरेबल हैं, उसमें से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है, और अवॉइडेंस में दोनों अनडिज़ायरेबल है, कौन सा लेस डिज़ायरेबल है. बट अप्रोच अवॉइडेंस में एक ही गोल है, आपको पता है कि ये एक गोल है और उसी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, तो आपको फिगर आउट करने में और दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसी का मोर और लेस 50-50 है कि 50 कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स 50% और 50% नेगेटिव पॉइंट्स. तो क्या आप वो चीज़ करें, क्या आप इफ़ यू शुड प्रोसीड और इफ़ यू शुड गो फॉर दैट ऑप्शन, तो आपको फिगर आउट करने में दिक्कत होती है. तो ज़्यादा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं करें कि ना करें. और जो डबल अप्रोच अवॉइडेंस होगा, वो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंपेरेटिवली भी डबल होगा, बिकॉज फिर 2 ऑप्शंस हैं ऐसे, 2 या मल्टीपल में मोर देन 2, तो 2 ऑप्शंस हैं ऐसे जिसमें हर एक में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है. तो अप्रोच अवॉइडेंस में ही आपको जब दिक्कत हो रही थी, तो डबल में तो और डबल आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा और ज़्यादा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा, बिकॉज हर एक जो गोल है, हर एक जो ऑप्शन है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है और मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना, तो वैसिलेशन भी ज़्यादा होता है. तो ये हमारा वैसिलेशन हो गया और ये हमारा पूरा इनफैक्ट मोटिवेशन कॉन्फ्लिक्ट हो गया. अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन.
Have you ever come across people who do not understand the value of distance? Maybe you're talking to them and maybe they're standing too close to you to the point where they make you uncomfortable. तो क्या आपने कभी ऐसे लोगों से मिला है जिनको वैल्यू नहीं पता है डिस्टेंस का, कि किस डिस्टेंस पे खड़े होकर बात करें तो सामने वाला भी कंफर्टेबल होगा? मे बी आप उनसे बात कर रहे हैं और मे बी आप उनको बहुत अच्छे से ना जानते हो, बट वो बहुत आपके पास आके बात कर रहे हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो अभी आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसमें हम समझेंगे द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। वील अंडरस्टैंड इन टुडेज टॉपिक कि कितना इम्पॉर्टेंट है डिस्टेंस को समझना, कि किस डिस्टेंस पे किस इंसान से बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, किस टाइप का रिश्ता है आपका इस इंसान के साथ जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। मे बी वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो द पीपल यू टॉकिंग टू, based on the relationship you have with that person, what kind of distance should you keep such that you do not make the other person uncomfortable, or maybe other people do not make you feel uncomfortable. So today's topic is about the theory of proxemics, that was given by Edward Hall. So the theory of proxemics that we are going to talk about was given by Edward T. Hall. तो ये जो थ्योरी है वो एडवर्ड टी हॉल द्वारा दी गई थी इन द 1960s. तो as we just talked about, this theory talks about how distance or the kind of role space plays when it comes to communication, how the amount of distance or space that you maintain between two people, between the other person you're talking to, how that affects the behaviors, the feelings of the people involved in the communication. So जो ये theory है proxemics का, जो एडवर्ड टी हॉल ने दिया है, उसमें बात होती है कि कैसे जो एक डिस्टेंस हमने बात की या जो स्पेस आप बना रहे हैं दो लोग के बीच में, जो एक स्पेस है वो क्या रोल प्ले करता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है उस कम्युनिकेशन पे, जो आप लोग जो बात कर रहे हैं उस पर कैसे इफ़ेक्ट करता है वो स्पेस, कैसे जो दो लोग इन्वॉल्व हैं या जो और लोग इन्वॉल्व हैं कैसे उनका बिहेवियर चेंज होता है, ऑल्टर होता है उस स्पेस से, कैसे उनकी फीलिंग्स चेंज होती हैं, उनकी भावनाएं कैसे अफेक्ट होती हैं उस स्पेस की वजह से, उस डिस्टेंस की वजह से, वो हम पढ़ेंगे इस थ्योरी में। तो जो ये थ्योरी है एडवर्ड हॉल का, इन्होंने 4 टाइप्स ऑफ फिज़िकल स्पेस दिए हैं, पर्सनल स्पेस रादर दिए हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे। ऑल राइट, सो वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, to help understand what Hall's theory was, और क्या क्या उन्होंने जोन्स दिए थे और वो कैसे काम करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे समझने में हमें ताकि आसानी हो, इसीलिए हमने डायग्राम बनाए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ स्टिक फिगर, ये एक स्टिक फिगर है जो कि लेट्स से इनका नाम है आनंद। ओके, सो आनंद यहाँ पे खड़े हैं और उनके आसपास ये हमारे जोन्स हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो नाउ वी विल लेबल द जोन्स, हम हर एक जोन को लेबल करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और रादर क्या डिफरेंशिएट करते हैं हर एक जोन को एक दूसरे से। So we'll keep labeling the zones and we'll keep understanding what each zone, how each zone is different from the other. So the very first one here is our intimate zone. So ये हमारा सबसे पहला जो जोन है वो इंटीमेट जोन है। अब ये ऐसा जोन होगा जो we usually share with very close friends or our partners, maybe our best friend or our very close friends or our partners, or so let's take examples. Let's say you are whispering something to your friend's ear, so that distance, that kind of distance that you have, or maybe a parent that is holding their child, so that kind of distance, or something you do with your partner, so that is the kind of distance you have with
these people who are very close to you, and that is called your intimate zone. तो जो intimate zone है वो जैसे कि हमारे जो बेस्ट फ्रेंड हो गए या बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको आपके बेस्ट फ्रेंड के कान में आप कुछ बता रहे हो, कोई गॉसिप दे रहे हो, कुछ टी दे रहे हो, तो आप उनके कान में जाके बताते हो, तो वो आप विस्पर कर रहे हो. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ डिस्टेंस दैट इंटीमेट जोन सजेस्ट. या फिर मे बी एक पेरेंट जब एक बच्चे को होल्ड करता है, दैट काइंड ऑफ डिस्टेंस. तो ये हमारा इंटीमेट जोन में आता है. अब कुछ डिस्टेंसेस सजेस्ट किए गए हैं जो इंटीमेट जोन है उसमें. तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें 18 और वी शुड राइट 0 to 18 इंचेस और 0 to 45 सेंटीमीटर. तो जो हम दो लोग की बात करते हैं जो लेट्स से इंटीमेट जोन में हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो या तो 0 to 18 इंचेस होगा या फिर 0 to 45 सेंटीमीटर होगा. सो सम distances, particular numbers have been given. So more or less some sources might say something, maybe a few centimeters apart, but more or less this is the kind of distance that is suggested for intimate zone, where two individuals, this is the difference or rather the distance that can exist between two individuals who are in the intimate zone. So this is about our intimate zone which we talked about, where maybe you are whispering to your friend or maybe hugging them and everything. So this will come under the intimate zone. तो ये हमारा intimate zone है जिसमें मे बी आप अपने दोस्त के कान में कुछ कह रहे हो, उनको मे बी आप हग करते हो, आपके एक पेरेंट का एक बच्चे को होल्ड करना, तो ये चीज़ें हमारे intimate zone में आता है. So now we will move on to the next kind of zone. So the next zone that we will talk about is the personal zone. Now intimate zone में we saw that it mainly concerns maybe your partners or maybe your very close friend, your best friends. But here in the personal zone, it's more about people who you are comfortable with. Maybe a classmate. So for example, there is a classmate of yours or maybe a colleague of yours who is a good friend. So you're talking to them. So the kind of distance that exists when you talk to them, or maybe you go to a party and then there are some people that you know and then you talk to them. So that kind of distance is what that signifies the personal zone. तो हमारा जो and this is the distance so we saw 18 inches, so it will be 18 inches to 4 feet or 45 centimeter to 120 centimeter more or less. तो जो पर्सनल स्पेस है इसमें इंटीमेट जो जोन था उसमें हमने देखा कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो गए या फिर आपके पार्टनर हो गए, उनके साथ जो आपका डिस्टेंस होता है, जो जिस जोन में आप रहते हैं, जितने क्लोज आप रहते हैं, वो इंटीमेट जोन हुआ. बट जो पर्सनल जोन है उसमें आपके जो दोस्त हो गए, कुछ में भी आपके क्लासमेट हो गए, आप या फिर आपके ऑफिस से कोई कोलीग हो गया, जो आपके साथ जो फ्रेंड्स हैं आपके जिनको आप जानते हैं, तो आप उनके साथ बैठ के बातें करते हैं. तो जब आप किसी एक फ्रेंड के साथ बैठ के बात करते हैं या मे बी आप एक पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे आप किसी को जानते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ डिस्टेंस दैट एग्जिस्ट, वो जो डिस्टेंस है, वो जो जोन है उसको पर्सनल जोन बोलते हैं. और जो इसका जो रेंज है वो 18 इंच टू 4 फीट है, या फिर सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो 45 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर. नाउ ये जो डिस्टेंसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं. तो मतलब अगर वो लोग डिस्टेंस दे देते हैं तो हम वी शुड बी एबल टू मोर और लेस मेक आउट कि कौन सा जोन है, विच जोन इट इज़. तो नेक्स्ट, सो दिस इज़ आवर पर्सनल जोन. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट जोन. Now the next zone or the next distance that we will talk about is the social zone or social distance. Now social distance is about, let's say you are going to when you go to a shopping mall, after you buy everything, you deal with the cashier, right? You talk to them or basically you check out everything. So that kind of, or that's a very specific example, but it could be anyone. So basically when you deal with strangers
or acquaintances that you are not close with, you're not friends with, but you just know them. So you're not friends with them, you don't really know them, it's mostly strangers. Or maybe in fact there could be times when you know them, you have seen their face, but you're not close. So that kind of distance that you have, who are either completely strangers or you're not close with them at all, so that kind of distance that happens, exists between you, that would be the social distance. तो सोशल डिस्टेंस हमारा है जब लेट्स से कि जैसा कि हमने बोला, मे बी एक हम कैशियर से डील कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्ट्रेंजर से जब हम डील कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई इंसान जो जिससे हम क्लोज़ नहीं हैं, मे बी हमारे ऑफिस में हम उनको रोज़ देखते हैं लेकिन हम क्लोज़ नहीं हैं, हमारी दोस्ती नहीं है उनसे, तो कभी कभार मे बी हाई हेलो हो जाता है. तो दैट काइंड ऑफ डिस्टेंस यू मेंटेन विद दोज हु आर यूजुअली स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर हो सकते हैं या फिर आप उनसे क्लोज़ नहीं हैं. ऐसे जो एक डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं सोशल जोन. नाउ इसका जो हम देखते हैं डिस्टेंस है 4 to 12 feet. Now finally we will talk about the public zone. So the public zone is one that happens whenever you do public speaking, as the name suggests. So let's say a politician talking before a group, before the public, or a teacher who is teaching in the classroom, or professor teaching in the classroom. So whenever public speaking happens, that is the kind of distance that exists between the speaker and the audience. That kind of distance is called the public distance or the public zone. तो जब public zone की अगर हम बात करें, तो जब भी public speaking होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब नेता भाषण देते हैं जनता के सामने, या फिर जो टीचर है, प्रोफेसर है, वो जब बच्चों के सामने लेक्चर देता है, पढ़ाता है, तो वो जो डिस्टेंस है टीचर के बीच में और ऑडियंस के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में सॉरी, या फिर जो नेता है और उनकी जनता के बीच में जो डिस्टेंस रहता है जब वो लोग स्पीक करते हैं, जब वो लोग बात करते हैं, भाषण देते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पर्सनल जोन. दैट काइंड ऑफ डिस्टेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस, और द ऑडियंस बेसिकली, दैट इज़ कॉल्ड द पब्लिक जोन. नाउ द डिस्टेंस इज़ मोर देन so this is 12 plus, so basically more than 12 feet, or if we talk about centimeter, 360 plus, that is more than 360 centimeters. So this is the distance. जो ये प्लस लिखा है मैंने कि more than 12 प्लस, यानी more than 12 feet का डिस्टेंस, या फिर अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 360 प्लस, यानी कि more than 360 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होता है पब्लिक जोन में. सो अगर हम क्विकली रिकैप करें, फिर क्विकली रिकैप, दिस इज़ द इंडिविजुअल एंड द क्लोजेस्ट वन, द क्लोजेस्ट जोन इज़ द इंटीमेट जोन. सबसे जो क्लोज जोन है वो इंटीमेट जोन है, जो कि आपके पार्टनर, आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में होता है जब आप हैंग आउट करते हैं, बात करते हैं. देन वी हैव द पर्सनल जोन, दैट इज़ that happens with friends who you are not very close with, but then you are not strangers. So when you talk to those friends, जब आप दोस्तों के साथ बात करते हैं जो बहुत क्लोज नहीं है, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स या पार्टनर्स नहीं है, बट स्ट्रेंजर्स भी नहीं है, वो हमारा है पर्सनल जोन. उसके बाद हम बात करते हैं सोशल जोन की, जो बेसिकली स्ट्रेंजर्स के साथ जब आप डील करते हैं, दैट इज़ द सोशल जोन. एंड फाइनली द पब्लिक जोन इज़ द व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग. जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तब हमारा पब्लिक जोन एग्जिस्ट करता है, वो तब हम देखते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर थ्योरी ऑफ प्रॉक्सिमिक्स. नाउ अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लेट्स से एक टीचर था आपके, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, और उनको आप पे कभी बिलीव नहीं था, मे बी किसी भी एक सब्जेक्ट का टीचर, तो उनको नहीं लगता था कि आप उनके सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे, और इसीलिए वो आपको हेल्प भी नहीं करते थे जब आपको ज़रूरत पड़ती थी, और इन दी एंड आपके उस सब्जेक्ट में एक्चुअली मार्क्स अच्छे नहीं आए, और फिर जो उनकी टीचर का जो बिलीफ है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर और आपको भी लगने लगा कि आपसे वो सब्जेक्ट नहीं होगा. So has it ever happened to you, has it ever happened to you that when you were back in school, there was a teacher, a subject teacher, who had this belief that you would not do well in this subject, and then whenever you needed help, they did not provide help, and then in the end you ended up missing your marks for that subject, in that particular subject, and hence your own belief and the teacher's belief, whatever they expected
from you that came true. They expected that you would not be able to do well, and that is what actually came true as well. So if this has ever happened to you, and if you are psychology students, if you have studied psychology before, I think you have already understood what we're talking about. So the topic we are talking about today is the self-fulfilling prophecy. Now this is a very जनरल एग्जाम्पल दैट वी गेव. एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल हमने दिया. अब हम समझेंगे जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है उसके दो टाइप्स हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होते हैं. थ्रू इट्स टू टाइप्स वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोफेसी इज एंड हाउ इट वर्क्स. So we'll understand that. So now let's move on to the two types of self-fulfilling prophecies. So the self-fulfilling prophecy, if we write down here, because if we write down it will be easy to understand. So let's say we have a belief, or maybe anybody, we had a belief which affected our actions. Somebody had some beliefs about you and that affected your actions, and finally those actions led to the expected outcome. So this is our self-fulfilling prophecy. तो आपका किसी एक इंसान का फॉर एग्जाम्पल आपके बारे में कुछ बिलीफ है और उस बिलीफ की वजह से आपके एक्शंस अकॉर्डिंगली आप दिखाते हैं, उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग आप एक एक्शन दिखाते हैं जिसका जो आउटकम है वो जैसा वो बिलीफ था, एक एक्सपेक्टेड जो आउटकम था वो मिलता है. तो जो बिलीफ था उसके अकॉर्डिंग ही एक एक्सपेक्टेड आउटकम मिलता है बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ इटसेल्फ. नाउ इफ इट साउंड्स कंफ्यूजिंग वी विल टॉक अबाउट, एज वी सेड, द टू टाइप्स ऑफ self-fulfilling prophecy. First one is the Pygmalion or Rosenthal effect, and the second one is the Golem effect. So तो अब हम देखते हैं कि ये जो दो टाइप्स हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के. सो हाउ डू दे वर्क, व्हाट दे आर. तो जो पिग्मालियन या रोजेंटल इफेक्ट है उसमें वी सी दैट हायर एक्सपेक्टेशंस लीड टू बेटर performance. While on the other hand, in the Golem effect we see that lower expectations lead to worse performance. So this is basically what our entire both of these concepts are. तो जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, तो जो पिग्मालियन या रोजेंटल इफेक्ट है उसमें जैसा कि लिखा है कि हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि इंडिविजुअल से तब उनका परफॉर्मेंस भी वैसे ही अच्छा होता है, बेटर होता है, वर्सेस जब आप लो एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी से तो उनका परफॉर्मेंस भी अकॉर्डिंगली लो होता है. तो अगर हम एग्जांपल लें, जैसे लेट्स से हमने जो स्टार्टिंग में बोला, वैसे अगर हम देखें कोई टीचर हैं जिनको ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, कि अक्सर ऐसे प्रिंसिपल्स बता देते हैं, अगर या फिर एक कोई पुराना टीचर हुआ उस नए टीचर को बता रहा है, या फिर एक सब्जेक्ट का टीचर दूसरे सब्जेक्ट के टीचर को बताता है कि ये बच्चे जो हैं, ये कुछ एक आध बच्चे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, सो फोकस मोर ऑन देम, तो इन पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि ये लोग अच्छा परफॉर्म करें और हमारे स्कूल का रेपुटेशन बढ़े उनका परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे. तो जब उनको ये बता दिया जाता है तो फिर वो टीचर और ज़्यादा ध्यान देता है ऐसे बच्चों पे, और इवेंचुअली क्योंकि उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उन बच्चों को जो अटेंशन मिल रही है तो उनको अच्छा लगता है, फिर वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं.
वर्सेस लेट्स से कि एक टीचर को बता दिया जा रहा है कि ये कुछ बच्चे हैं, ये लोग होपलेस हैं, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर उस टीचर के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, तो इसलिए वो टीचर जो है और एफ़र्ट नहीं डालता है उन बच्चों पे, और फिर उन बच्चों को भी लगता है कि क्योंकि हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है तो हम क्यों परफॉर्म करें, तो इसीलिए उनका धीरे धीरे जो परफॉर्मेंस है वो वैसे ही लो हो जाता है। तो उनका जो एक्सपेक्टेड आउटकम यहाँ पे था कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, जो कि इन दी एंड सच हो जाता है, जो कि बिकॉज उनको उतना टेंशन नहीं मिला, केयर नहीं मिला, इसीलिए वह होता है। तो इसीलिए उनका जो एक्सपेक्टेड जो उनका बिलीफ था, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो इन द पिग्मलियन इफेक्ट अगर हम देखें तो टीचर का बिलीफ था कि जो ये बच्चे हैं या कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा है, तो हमें उनमें एफ़र्ट डालना है। तो फिर अकॉर्डिंगली जो टीचर है वो अटेंशन देता है उनको, जो बच्चा है उसको अटेंशन अच्छा लगता है तो वो और अच्छे से पढ़ता है। तो एक्सपेक्टेड आउटकम में फिर हम देखते हैं कि उस बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा होता है, तो जो एक्सपेक्टेड आउटकम था कि वो अच्छा रिज़ल्ट लाएगा वो पूरा होता है। वर्सेस गोलेम इफेक्ट में हम देखते हैं कि बिलीफ था कि वो कुछ बच्चे हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, कि उनका मन नहीं है पढ़ाई में, और कि वो बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो टीचर का एक्शन है कि वो उन पर ध्यान नहीं देता है। फिर वो बच्चों का एक्शन है कि वो लोग गिव अप कर देते हैं बिकॉज टीचर ने उस पर गिव अप कर दिया है। और फाइनली जो एक्सपेक्टेड आउटकम था कि ये बच्चे अच्छा नहीं करेंगे वो एक्चुअली ट्रू हो जाता है। तो अगर हम देखें ये हमारा जो पिग्मलियन इफेक्ट है, ये एक दिस इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, and a Golem effect is just the opposite, it is the negative aspect. So this is all about so if we again quickly discuss, so Pygmalion effect is when you have higher expectations and accordingly better performance is seen. So as we discussed earlier that let's say there is a teacher who has high expectations from a student, maybe she has been told that these few students are very good at studies, and if you pay attention on them, you have to pay extra attention to them so that they perform better, because it is expected that they will. So the teacher the teacher's belief is that these students will perform well, so she puts in all her efforts to help them study better, and the students even they feel they like the tension, they like that the teacher expects so much from them, and the students action is that they give their best, they study very hard, and the expected outcome would be that they perform very well. Now in the Golem effect we see that the belief, maybe the teacher in this case has been told that these few students they are not good students, they are not serious about their studies. So the belief of the teacher is that these students are not good at studies, that they don't want to study. So her or his action, the teacher's action would be that she would not or he would not put in efforts to help the students, she would not be there, he would not be there for the students. And the students would also give up because they feel that nothing is being expected from them, nothing good is expected from them, so why should they put in the efforts? So the students will also not put in efforts, and finally the expected outcome would be that the students will not score well as was already expected from them. So this is a very important concept जो हमारा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। ये हमें बताता है कि अगर स्पेशली हम टीचर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो रॉबर्ट रोजेंथल ने किया था। Robert Rosenthal conducted this experiment on Pygmalion effect actually, and there he realized, so he did not tell the teachers so he took random students and he told the teacher that they would perform well, and the students and the teacher believed that they would perform well, and that is why she paid special attention to those students and they ended up performing well, although the students were picked up randomly. Alright, तो जो रोजेंथल थे, जो रॉबर्ट रोजेंथल, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में रैंडमली कुछ बच्चों को चूज़ किया हुआ था और फिर एक टीचर को बताया गया कि ये लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इन पे ध्यान दीजिए, और जब उस टीचर ने ध्यान दिया तो उन बच्चों ने एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया। तो ये हमारा रोजेंथल इफेक्ट है, और तो ये हमें बताता है कि अगर हम स्पेशली स्कूल के रिस्पेक्ट में देखें कि टीचर्स का जो एक्सपेक्टेशन है, द एक्सपेक्टेशन दैट टीचर्स हैव फ्रॉम स्टूडेंट्स, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू शेप the kind of actions the students will show, how much well they perform, that really depends on how the teacher expects from the students. तो ये हमें बताता है कितना ज़रूरी है टीचर्स कितना एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, क्या वो पहले ही गिव अप कर देते हैं कि क्या उनको उम्मीद है कि हर बच्चा अपना बेस्ट दे पाता है कि नहीं, कि हर बच्चा इनफैक्ट अगर आप अपने एफर्ट्स डालें एज ए टीचर तो बच्चा भी एफर्ट ज़रूर डालेगा।
तो ये एक चीज़ हम समझ सकते हैं, जानते हैं, पहचान सकते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से। सो नाउ ऑन टू आवर लास्ट वेरी शॉर्ट टॉपिक। तो हमारा फाइनल टॉपिक आज का और इनफैक्ट इस पूरे सोशल साइकोलॉजी सीरीज़ का हम अभी करेंगे। तो दिस टॉपिक दैट वील डिस्कस राइट नाउ इज़ द फाइनल टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास एंड आवर एंटायर सोशल साइकोलॉजी सीरीज़। सो has it ever happened to you that for the very first time when you listen to a song, you didn't really like it, okay, but then you kept on listening, maybe it's a trending song, so you keep it listening on the reels and everything, and when you keep listening to it, you develop a liking for the song. सो क्या कभी आपके साथ हुआ है कि पहली बार आप किसी गाने को सुनते हैं और आपको वो उतना अच्छा नहीं लगता, बट फिर क्योंकि आप रिपीटेडली किसी भी वजह से उस गाने को सुनते रहते हैं, जैसे पहले रेडियो चलता था तो बार बार गाना आता था, और आजकल रील्स में जो ट्रेंडिंग गाने हैं वो बार बार आप सुनने को आपको मिलता है, तो मे बी फिर आप बार बार उस गाने को सुनने लगे तो आपको वो गाना पसंद आने लगा। तो इफ़ यू एवर एक्सपीरियंस दिस, सो दिस इज़ नोन एज द mere exposure effect। ये जो फिनोमेना है हमने अभी डिस्कस किया, इसको बोलते हैं mere exposure effect। कि आपको इनिशियली मे बी कोई चीज़ आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट क्योंकि आप बार बार उसको आपका एक्सपोजर हुआ बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट एक्सपोजर, सो व्हाट वी सी हियर इज दैट frequent exposures to anything, to any kind of thing, leads to you developing a liking for it। सो जो हम मियर एक्सपोजर इफेक्ट में देखते हैं कि आपका किसी भी चीज़ से फ्रीक्वेंट एक्सपोजर होता है, बार बार आप कोई चीज़ जानते हैं, सुनते हैं, जानते नहीं हैं, कोई भी चीज़ आप बार बार सुनते हैं जब, या फिर देखते हैं जब, बार बार आपका एक्सपोजर होता है किसी चीज़ से, तो फिर एक लाइकिंग डेवलप हो जाती है उस चीज़ के लिए, जो कि मे बी पहले नहीं थी, पहले कोई फेमिलियरिटी नहीं थी उस चीज़ से, पर धीरे धीरे जो फेमिलियरिटी बिल्ड होती है, द काइंड ऑफ फेमिलियरिटी दैट बिल्ड्स विद टाइम, दैट समटाइम्स लीड्स टू यू एंडिंग अप लाइकिंग something. So it does not happen all the time, but happens most of the time. So now if you take an example besides this one that we talked about earlier, about maybe you listened to a song once, you didn't really like it, but then after this, listening to it repeatedly, you ended up liking it. Now a very important example that you might also be able to relate to is the advertisements that we see everywhere. So maybe there is a certain product that you were not interested in the beginning, and you just skipped the ad, you just did not think a lot about it, but because of the repeated exposure, maybe there is this app that you are watching some show on, so the same ads are shown multiple times, so after a particular point you pay attention to it, and you might not always develop a liking to it, but there is this sense of familiarity that we talked about. So this repeated exposure, it also brings a sense of familiarity, कि आप उससे familiar हो जाते हो, आपको उसकी थोड़ी आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए जैसे हमने बोला, एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया कि सिवाय उस गाने के एग्ज़ाम्पल के, कि रिपीटेडली जब कोई ऐड दिखाया जाता है, एडवर्टिजमेंट में भी आप कोई शो देख रहे हो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, और बार बार एक ही ऐड रिपीट होता है, तो मे बी स्टार्टिंग में आपने उस पर उतना अटेंशन नहीं दिया, बट विद टाइम आप का अटेंशन जाता है उस पर, और क्योंकि बार बार आप देख चुके हैं आई एम सॉरी, तो एक फेमिलियरिटी डेवलप हो जाता है, और कभी कभी आपको एक लाइकिंग भी डेवलप हो जाता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो मे बी अगली बार जब भी आप शॉप में जाओ, वेन एवर मे बी यू गो टू अ मॉल और एवरीथिंग और एनीथिंग, एंड यू कम अक्रॉस दैट प्रोडक्ट, बिकॉज यू कैन रिलेट टू द एड, बिकॉज ऑफ दैट सेंस ऑफ फेमिलियरिटी, यू वुड prefer to buy that whatever that thing is. So that is the tactic that advertising, the tactic of advertising that is used by companies. तो फिर जैसे आपको उस चीज़ में एक जो फेमिलियरिटी डेवलप हो गया, तो अगली बार जब आप मॉल में शॉपिंग करने कहीं भी जाएंगे, तो अगर आपको वो चीज़ दिखे वर्सेस सेम कैटेगरी का कोई और ब्रांड का,
तो आप जिस प्रोडक्ट को आपने बार बार देखा है, आपका एक फेमिलियरिटी डेवलप हो गया है, आप उसको ख़रीदना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको एज ए सेड एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, आपने उसको पहले देखा है, वर्सेस एक कोई दूसरे ब्रांड का चीज़ जिसको आपने कभी देखा नहीं है। आप ऐसे बोलते होंगे कि हाँ, इसका नाम मैंने सुना है, इस ब्रांड का नाम मैंने सुना है, आई हैव हर्ड अबाउट दिस ब्रांड बिफोर, सो आई रादर गो विद दिस वन इंस्टेड ऑफ गोइंग विद वन दैट यू हैव नेवर हर्ड बिफोर। सो this is our mere exposure effect. So this is it for our social psychology series entirely. Next we will move on to another unit. We'll end our class here. Thank you so much for joining us. हमारा आज का क्लास और सोशल साइकोलॉजी का सीरीज़ ख़त्म होता है। अब हम दूसरे यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ आया, अगर आपको अच्छा लगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।